اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے۔ آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ اللہ جیسے بادشاہ، محمد جیسے وزیر، اللہ جیسے بادشاہ، محمد جیسے وزیر، حضرت خواجہ خضر جیسے دل بند دستگیر جیسے پیر حضرات کھلے، جلد کھلے، چار کوٹ کی راہ کھلے، دعائی حضرت خضر کی، دعائی مہتر الیاس کی۔ یہ ایک ایسی عزائمت ہے، یہ ایک ایسا شعر ہے، عزائمت ہے، یہ ایسی بلند اور بالا آپ لگا لیں کہ ایک نسخہ ہے جو موکلین کو حاضر کرتا ہے، اور اس کا ایک دن میں جو ہے موکلین کی حاضری کا نایاب عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی چھوٹے بچے کو جس کی عمر 10 سے 14 سال عمر ہو اور وہ نابالغ ہو، تو آپ نے ناخن پر سیاہی لگا کر اور اوپر کوئی اس کے اچھا سا عطر لگا کر، یعنی عطر گلاب لگا کر، اگربتیاں سلگا کر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 28 مرتبہ جو اوپر میں نے آپ کو کلمات کہے ہیں یہ پڑھ کر آپ نے اس بچے پر دم کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دم کریں 4 عدد گلاب کے پھول، ٹھیک ہے، آپ نے توشے میں یعنی ان کے تحفے میں رکھنے ہیں۔ 1 پاؤ تازہ برفی حضرت خواجہ خضر کی نیاز دلانی ہے، اور بچے کو ناخن کی سیاہی میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جو ہے موکلین کا نزول ہوگا، جس کے مقصد سے آپ ہر سوال کا بآسانی جواب حاصل کر سکتے ہیں اور درست اور تسلی بخش جواب آپ کو دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر چاہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کے قابو میں رہے، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل جو موکلین ہے ہمیں بھی نظر آئے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ 11 دن تک آپ ان کی زکوٰۃ کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے 11 دن آپ پڑھائی کریں گے۔ 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد اور پرہیز جمالی کریں گے۔ اور اس کی جب آپ مطلب کہ موکلین کی حاضری کرواؤ گے تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی اجازت کا جو طریقہ بتایا ہے وہ اختیار کرو گے، پھر یہ آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اجازت کا جو بھی طریقہ آپ کو بتائیں وہ آپ ہی کی فائدے کے لیے بتایا جاتا ہے، تاکہ آپ ہر عمل میں کامیابی حاصل کر سکو۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے عملیات کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مکمل ایسے نایاب عمل ہے، اس میں توبہ نعوذ باللہ توبہ استغفار، کوئی غلط، کوئی جھوٹ یا کوئی ایسا فریب نہیں ہے، مکمل آزمائے ہوئے اور مکمل آزمودہ یہ میں نے آپ کو علم بتائے ہیں۔ آپ کر کے دیکھیے گا اور ضرور آپ کو اللہ پاک اس کے فیض سے نوازیں گے۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کو مکمل طریقے سے پہلے ایک دفعہ دیکھیں کہ میں نے کون سی ویڈیو بنائی۔ اگر پسند آتا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت ہے۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے۔ کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔
डालिए, यानी कि कभी आपने गंदम के दाने को देखा होगा कि आप एक दाना गंदम का जमीन में देते हो तो उसके बदले कितना बड़ा पौधा अल्लाह पाक गंदम का अता फरमाते हैं। तो इस तरह ये अल्लाह पाक कर्ज देने वाले की मदद करते हैं। अगर कोई मदरसे के लिए या मासूम को बेसहारा बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं तो इस ईमेल पर राब्ता करें। इजाजत दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये एक छोटा सा पैगाम है जो आपके लिए है। अल्लाह हाफिज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम माजरत ख्वाह हैं कि अगर हमारी वीडियो से किसी फिरके, मसलक या मजहब के मानने वालों की दिल आज़ारी होती हो। हमारी वीडियो का सिलसिला और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुखी और परेशान और बेसहारा लोगों की रहनुमाई करना है और न कि किसी और मजहब को तकलीफ पहुंचाना। और जितनी भी अमलियात हैं कुरान पाक से और अल्लाह के जिक्रात से लिए गए हैं, इनकी इज्जत करना आप लोगों का फर्ज है। और शराइत नंबर 1 में अमल शुरू करने से पहले अमल की ज़ुकार यानी कि अमल की इजाजत का तरीका लाजिम है। अमल की इजाजत का तरीका ये है कि किसी गरीब को 3 दिन तक आप एक वक्त का खाना खिलाएंगे या किसी मस्जिद की तामीरी में या मदरसे में 10 किलो गंदम की कीमत के बराबर कुछ रकम सदका करेंगे और या 6 किलो चीनी अशरात को डालकर इजाजत का तरीका इख्तियार किया जा सकता है। शराइत नंबर 2 में सबसे पहले अगर जिस में बताया गया हो कि 9 चंदी जुमेरात का जो है तरीका इख्तियार करना है या अमल को 9 चंदी जुमेरात को शुरू करना है तो आप 9 चंदी जुमेरात को ही शुरू करेंगे। जिसमें ना बताया गया हो या कहा गया हो कि किसी भी दिन शुरू कर लें तो आप किसी भी दिन अमल का जो तरीका है शुरू कर सकते हैं। अमल को जिस तरीके से आपके साथ पेश किया जाता है या बताया जाता है आप उसमें रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते। वाज़िया रहे इस्लामी महीनों की पहली तारीखों के बाद यानी कि पहली तारीखों की 3 तारीखों के बाद जो पहली जुमेरात आती है इसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं। अगर पहली तारीखों में 1, 2, 3 तारीखों में जुमेरात आती है तो वो जुमेरात 9 चंदी जुमेरात नहीं कहलाएगी, वो आम जुमेरात कहलाएगी। बल्कि उसके बाद जो जुमेरात आएगी चाहे वो 4 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए तो वो 9 चंदी जुमेरात कहलाएगी। ये आपको वाज़िया करने के लिए तफसील से बता दिया गया है, इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो। अमल की शराइत, इस अमल में जलाली और जमाली परहेज आप लाजिम करेंगे जिसमें आपको बता दिया गया हो। जिसमें आपको जमाली कहा जाए जमाली करें, जिसमें जलाली कहा गया हो जलाली करें। जमाली और जलाली परहेज की जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। आप हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो को वहां से सुन सकते हैं। मुकम्मल परहेज और शराइत वहां पर पोस्ट कर दिए गए हैं, वैसे भी स्क्रीन पर चला दिए गए हैं। परहेज जो जलाली है और जमाली है इसमें गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लहसुन, प्याज ये चीजें आप नहीं खा सकते। और जो परहेज जमाली है वो बहुत बड़ा परहेज है। गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दही, लहसुन, प्याज और सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर पर किसी गैर के सोना, जानवर की खाल से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म को छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल ना करना परहेज जलाली में आता है। इन सब चीजों से आप परहेज करेंगे। खाने में सिर्फ और सिर्फ आप नमक, पानी, उबले हुए चावल या कद्दू सिर्फ खा सकते हैं। ये फलों के अलावा आप थोड़ा सा केला खा सकते हैं, थोड़ा एक आधा सेब खा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कोई चीज भी नहीं खा सकते। पत्तों वाली सब्जियों में से सिर्फ और सिर्फ वो सब्जी खा सकते हैं जो हम आपको अमल में बताएंगे। लेकिन अगर अमल में कोई ऐसी सब्जी का जिक्र नहीं किया गया तो आप नहीं खाएंगे। सिर्फ पानी और नमक और जो चीजों का इस्तेमाल कहा गया है वो आप खाएंगे। परहेज जमाली में सिर्फ आप जौ के आटे की रोटी या फिर जैतून के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज नहीं करेंगे क्योंकि तस्खीर की अमलियात में इस किस्म का जो परहेज करना लाजिम होता है। अब
अमल को मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करें, दिल में कोई ऐसा शक न रहे कि अमल में कोई खराबी है या अमल बेफैज है। वाज़ेह रहे अमल की कामयाबी का इंसार आमिल के यकीन पर होता है। जितना आपका यकीन मजबूत होगा इतना ही अमल मजबूत होगा, अमल में कामयाबी होगी और नाकामी का इम्कान कम होगा। ये सब शराइत आपको समझ लेनी चाहिए। अमल में जिसमें आपको हिसार कहा जाए हिसार करें, जिसमें आपको हिसार ना कहा जाए उसमें हिसार ना करें। अगर आप जिस अमल में हिसार कहा गया है अगर आप हिसार नहीं करते तो रिजल्ट का नुकसान होता है, रिजल्ट का खतरा होता है। इन चीजों से दूर है। रिजल्ट की दुआ, रिजाले गैब की दुआ और सितारों को सलाम और जो तरीका इख्तियार किया गया है वो आपको साथ पेश कर दिया गया है। वो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियो के लिंक्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ से आप तमाम रिजल्ट की दुआ वगैरह भी सुन सकते हैं। हिसार के लिए एक बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों को पढ़कर किसी चाकू या खंजर से आप दायरा खींचे और इसे हिसार कहते हैं। ये हिसार एक मजबूत किला होता है और आपकी हिफाजत के लिए होता है। जिसमें हिसार का कोई और तरीका बताया गया हो और वही इख्तियार करेंगे। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें। सबसे पहले अमलियात की दुनिया में राज रखना सबसे पहला अमल होता है। यानी कि अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो सिर्फ मुर्शिद अपने जो मुरीद है अपने मुर्शिद से ही अपनी कोई भी बात हो वो बता सकता है और किसी को भी नहीं बता सकता। अमल मुकम्मल राजदारी से करें। अगर आप राज को फाश करेंगे या बताएंगे लोगों को तो अमल में कामयाबी कभी भी नहीं होगी। अपना करीब दोस्त, बहन, रिश्तेदार, भाई, माँ बाप किसी को भी अपने अमल का ना बताए और ना इनसे जिक्र करें, वरना आपके हाथ में कभी भी कुछ नहीं आएगा। अमल कौन लोग नहीं कर सकते? अमल के दौरान हर किस्म का नशा आपको छोड़ना होगा। वाज़ेह रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हीरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आप तमाम चीजें से परहेज करेंगे। अमल के दौरान जो लोग नशा करते हैं या वो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो सबसे पहले 3 महीने तक इस चीज से परहेज करेंगे और फिर अमल को शुरू करेंगे। अमल की इजाजत, इस अमल की इजाजत हर किसी को मिल चुकी है, तरीका बता दिया गया है। अगर आप जायज मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो ये अमल जरूर करें। अगर आप गलत मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो नुकसान के हकदार आप होंगे, मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। आइए अब अमल की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज। और आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया।